Hello everyone. Today in this lesson I am going to start the remaining part of the exercise 10.2 in which 4 questions we have already solved. Now I am starting from the question number 5th, and the given question is in a triangle ABC. A triangle is given which is ABC. In triangle ABC, AD, BE and CF are 3 medians intersect at point G, जो कि म्यूचुअली G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. देन प्रूव दैट, तो पहले तो अपन ये लिख देते हैं जो कि हमें जो हमें दे रखा है, गिवन दैट in triangle ABC, AD, BE and CF are medians intersect at point G. क्लियर है. अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव 4AD plus BE plus CF. 4AD plus BE plus CF is greater than 3AB plus BC plus CA और AC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. मीन्स AD, BE and CF, AD, BE and CF, these are medians and these are sides. इनका 4 times is greater than the 3 times of the sum of the all sides of a triangle. So let's start. How will we do this one question? प्रूफ पे बात करें तो चलो मैं एक काम करता हूं, ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं. फॉर्म ट्राइंगल AGB. AG plus BG, AG plus BG is greater than I think AB. बात समझ में आई होगी. यूजिंग ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी. क्लियर है यहां तक? वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ AG इन AD. तो AG के लिए अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD एंड BG को अपन लिख सकते हैं 2/3 ऑफ BE. एम आई राइट? BG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BE इज ग्रेटर देन AB को एज इट इज रहने दो, क्योंकि AB तो हमें रिक्वायरमेंट है ना, AB. और इसको अपन 2/3 कॉमन लिया, क्या बचा? AD प्लस BE इज ग्रेटर देन AB and cross multiplication, then 2AD plus BE is greater than 3AB. It is the inequality number first. Got it? Similarly, अब सिमिलरली करके लिख दो. इतनी लंबी स्टेप वापस से रिपीट करना कंपलसरी तो है नहीं. सिमिलरली इन ट्राइंगल BGC, ट्राइंगल BGC के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? देखो 2 times of BE plus CF, 2 times of BE plus CF is greater than, किससे बड़ा होगा ये? 3 times of BC, 3 times of BC. This is the inequality number second. And last and final case, in triangle AGC के लिए अपन क्या बोल सकते हैं? 2 times of AGC. इससे देखो एक तो मीडियन ये बन रही है, एक ये बन रही है, तो मीन्स 2 times of CF plus AD. AD plus CF is greater than 3 times of AC. This is the inequality number third. अब ऐड कर दो तीनों को. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. LHS will become
देखो 2 सब में है, कॉमन आएगा, रिजल्ट क्या मिला, AD प्लस BE प्लस B प्लस CF प्लस AD प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 कॉमन लिया तो AB BC एंड AC, AB BC AC, गॉट इट। ये रहा 2 as it is, AD 2 times of AD, 2 times of BE and 2 times of CF is greater than 3 times of AB plus BC plus AC. 2 is again common, taking it out and it will multiply by 2 and result will be 4. AD plus BE plus CF are remaining in the left side and the RHS will remain constant or same, and that's we have to prove. बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज P इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ऐसे दे रखा हमें 6 क्वेश्चन में एक ट्राइंगल हो गया ABC। Let's suppose this is a triangle ABC. P is orthocenter, and what is the meaning of the orthocenter? Orthocenter is a point at which the altitudes intersect each other. मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। मतलब P इसका ऑर्थोसेंटर है, श्योर है ना, P की बात हो रही है ना, P ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया अपन ने 90 डिग्री, ये अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो तीसरा एल्टीट्यूड भी यही होगा, AD BE and let's suppose this is CF and it is the point P, जो कि दे रखा है P is the orthocenter, G मत ले लेना because already given in the question, and then prove that A is the orthocenter of triangle PBC। अब हमें क्या प्रूव करना है, prove that A is orthocenter of this triangle। आई बात समझ में, चलो बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, what is the given in triangle ABC, P is an orthocenter of altitudes AD BE एंड CF। P इन तीनों साइड्स का या एल्टीट्यूड्स का क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अब वो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, A इज एन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC। ध्यान रखना कौन सा ट्राइंगल, PBC का। अब इसके लिए हमें क्या प्रूव, पहले तो ये तो पता चले कि हमें प्रूव ही क्या करना है, ये तो पता चल गया है कि ऑर्थो सेंटर प्रूव करना, देन हाउ वी हैव टू प्रूव, ये बात भी तो कंपलसरी होगी ना कि ये इंपॉर्टेंस रखेगा कि ऑर्थो सेंटर प्रूव किया कैसे जाए। तो हम कैसे भी करके ये प्रूव करें कि ये साइड, ये वाली जो AB है, AB AC एंड AD ये ट्राइंगल PBC के एल्टीट्यूड से यदि ये बात प्रूव हो जाएगी ना, तो ये तीनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, A पे, और यदि एल्टीट्यूड्स किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा प्रूफ। चलो अब देखो मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं। ये ट्राइंगल हो गया PBC, PBC, यहां से साफ शो हो रहा है डायरेक्टली कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब BF इज परपेंडिकुलर ऑन CP। बात समझ में आई, BF इज परपेंडिकुलर ऑन CP। CP को आगे प्रोड्यूस करने पे हो सकता है एल्टीट्यूड, ये कंपल्सरी नहीं कि अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। जैसे मान लो ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, अब इसमें यहां कहां 90 डिग्री एंगल होगा, हाइट, तो ये एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट, तो ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, जो कि कहां पे, एक्सटर्नल और एक्सटीरियर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सिमिलरली इन दिस केस आल्सो BF इज एन एल्टीट्यूड फॉर ऑन द साइड CP। क्लियर है,
तो ये लिख सकता हूं इन ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी BF is perpendicular on CP at point F. बात समझ में आई यहां तक? BF is perpendicular on CP at point F. ठीक है। सिमिलरली आगे आओ, इसको आगे प्रोड्यूस करवाने पे एक ऐसे मिल रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री, ये है ना यहां पे ये वाला CE is perpendicular and CE is perpendicular on BP, BP पे है, BP at point, किस पॉइंट पे? E पॉइंट पे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ये हो गया, सेकंड वर्टेक्स ये हो गया, अपोजिट साइड पे, तो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड द अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स is this one, and we have already drawn a perpendicular, and now only one vertex is remaining, which is the vertex P, and from here the opposite side is this, so we will draw a perpendicular in this type. Clear है? So for it we can say that PD is, and last and final, PD is perpendicular on DC at point D. क्लियर है बात यहां तक? ये डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने। अब बात करते हैं, अब देखो, अब तो अपन ये बोल सकते हैं BF, CE एंड PD। सो BF, CE एंड PD आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। भाई अल्टीट्यूड ही तो होंगे ना, ये भी अल्टीट्यूड रहा, ये भी अल्टीट्यूड रहा, ये भी अल्टीट्यूड रहा, एंड विच आर दीज आर। अब देखो इनको इधर प्रोड्यूस करवाऊं मैं तो ये कहां मिलेंगे? ये तो आगे ये बिखरते ही जा रहे हैं, तो ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर तो कहीं अवेलेबल नहीं होगा। फिर ऊपर की साइड चलो, ये ऐसे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। तो इन एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया? ए पॉइंट, और इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे इस ट्रायंगल के लिए? ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल पीबीसी विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, therefore A is an orthocenter of triangle PBC, and we have to prove. Clear? So please pause this and note it down. Seventh question, I am starting now. Given question is triangle ABC is given. In triangle ABC, three medians are there, AD, B and CF, passing through the point Z. AD, BE and CF, these are three medians intersecting each other at point G. Then what we have to find out, two cases are given here. A, GF is equals to 4 centimeter है ना? हाँ 4 centimeter, 4 centimeter. फाइंड जीसी क्या होगा? तो GF 4 है, तो ये कितनी होगी? इसकी डबल, तो जीसी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। खुद से कर लेना। B, AD इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड GD। AD 7.5 दे रखी है, तो 7.5 इन दोनों का सम है, तो ये हो जाएगी 2x और ये हो जाएगी x की वैल्यू आएगी 7.5/3, तो 2.5, और हमें क्या कैलकुलेट करना था? GD, जो कि होगी 2.5। ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, एंड नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 8। यहां कर लेता हूं। द गिवन क्वेश्चन इज ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। ऐसे दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है। ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. D is midpoint of BC। ये दे रखा है D is a midpoint of BC।
ठीक है बात यहां तक? इट मीन्स दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. देन प्रूव दैट सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इंसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑल लाई ऑन लाइन एडी. चारों जो सेंटर होंगे, सर्कमसेंटर, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड एक कौन सा बचेगा, सेंट्रॉइड. पहले तो इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए. सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इंसेंटर, सर्कमसेंटर, वो सभी एडी पे लाई करेंगे. तो ये लो अपना हो गया एडी. ठीक है, हमें ये पता है कि मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड. तो एडी क्या है, एडी एक मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा रहे. ये क्या है, डी इज द मिड पॉइंट. डी इज, पहले तो गिवन दैट in triangle ABC, in triangle ABC, AB is equals to AC and D is a midpoint. D is midpoint किसका, of BC. D is the midpoint of BC. To prove, हमें क्या प्रूव करना है, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड एंड कौन सा बच गया, ऑर्थोसेंटर. लाई ऑन एडी. ये सब के सब किस पे लाई कर रहे हैं, किस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एडी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब देखो बात करते हैं इन सेंटर का मतलब क्या होता है. इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर. ठीक है बात यहां तक, मतलब एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे. सर्कम सेंटर का मतलब ये हो गया जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे. सेंट्रोइड जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे. ऑर्थो सेंटर जहां पर एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे. मान क्या लें, डी इज अ मिड पॉइंट. प्रूफ, डी इज अ मिड पॉइंट of BC. Therefore, D is AD is a median for side. ये BC साइड के लिए मीडियन होगी. अब दूसरी कोई भी मीडियन, मान लो कि ये इसका मिड पॉइंट है, इसको इंटरसेक्ट यहां करो तो इस लाइन को तो इंटरसेक्ट करेगी ना वो यहां पे. इसका मतलब क्या हुआ, एडी यदि मीडियन है तो जो भी आपका सेंट्रोइड है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, एडी पे ही एग्जिस्ट करेगा. therefore we can say that, क्या कह सकते हैं अपन, से दैट सेंट्रोइड लाइज ऑन एडी. एक तो हो गया, सेंट्रोइड को तो अपन ने लाई करवा दिया किसके ऊपर, एडी के ऊपर. अब बात करते हैं, अब हम इसको इन सेंटर, हम कैसे भी इसको ये प्रूव कर दे कि ये एंगल बाइसेक्टर है. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, ध्यान से देखना, एंड ट्राइंगल ए डी सी. एडीबी में देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन वैल्यू, इट इज गिवन. AD is equals to AD, it is common. And last क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, BD is equals to CD and this is given because D is the midpoint of, D is midpoint, या फिर लिख दो ना given, ये भी तो दे रखा है, D is midpoint of BC, it is given. Triple S criteria, property of congruency. What can we say? ABD, triangle ABD is congruent triangle ACD using CPCT. Using CPCT, ये दोनों एंगल इक्वल, बात समझ में आई. एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, और यहां से ये पता चल गया AD इज एंगल बाइसेक्टर. ध्यान रखना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है.
एडी इज एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मिड पॉइंट है तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल एंगल होंगे, लाइन पे बन रहे हैं तो एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के। एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, जो कि हम बोल सकते हैं कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम ए डी को परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर भी तो बोल सकते हैं, देयरफॉर ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है बात यहां तक, इसको भी थोड़ा सा नोटिस में रखना। एक और बच गया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। भाई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये अल्टीट्यूड भी तो हो गया। एंड AD इज ऑल्सो एन अल्टीट्यूड ऑन साइड BC। ठीक है, ये एल्टीट्यूड भी हो गया। अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया सेंटर लाइज ऑन AD। इस पे बात करो, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसके ऊपर से तो पास होगा, इसको तो इंटरसेक्ट करते हुए चलेगा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से अपन बोल सकते हैं हेंस वी कैन से दैट इससे क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर आर इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट, एट एनी पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज द इंसेंटर। इंसेंटर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इसके ऊपर से पास होगा कहीं ना कहीं से इन सेंटर, तो और वो पॉइंट क्या होगा आपका सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड जो कि है एल्टीट्यूड, तो सेकंड एल्टीट्यूड यदि ड्रॉ करेंगे वो इसके ऊपर से पास होगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ऑल्सो लाई ऑन AD, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट।